Okay. Now this was all part of about string functionality. Okay. अब इसी तरह मैं आपको what I will give today, I'll give a question. You have to perform manually on a paper and you have to answer me. आपको जो अभी solution लिख के आना है, अब करना है. You don't have to perform anything. You can perform later and check. Suppose if I'm taking a variable s and I'm taking from the input. Okay. Suppose enter the name of country, for example, and I'm writing print as print के through ही करेंगे. Okay. Now my question will be what? Enter the name of the country. After entering the name, reverse the name of country. Reverse the name of the country. Means what thing I should write over here? Can anyone tell me what thing I should write in order to reverse the whole country name? -1 colon. -1 colon. Again. 0. हाँ 0 0 लिखोगे तो भी चलेगा. अगेन कोलन 1. अगर 0 लिखोगे तो 0 वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा. In order to include that, we have to leave it blank. In order to include that, we have to leave it blank. Okay, if I'm checking like this, if I'm pressing F5, and it will ask me a particular sorry, right. I think I done. Oh, sorry, forgot the bracket. My mistake. Okay. Suppose I'm writing India, so it will reverse the whole word. Okay, in such a way manner. ऐसे करके मैं 4-5 क्वेश्चन दूंगा. ओके, ये तो मैंने यूजर इनपुट के थ्रू दिया है. मैं तो डायरेक्ट टेक्स्ट दे दूंगा और आपको वो परफॉर्म करके मुझे रिवर्ट करना है. अब हम लोग बात करते हैं. Now this what the membership operator over here right now we are checking with only string portion. Suppose if I'm checking ABC in suppose I'm writing ABC kingdom. Okay. If I'm checking this thing, it will result the answer true. That means it is checking the particular text part. अब हम नंबर सपोज चेक कराना है. मैं सपोज बोलूंगा 12 इन, मैं सपोज नंबर दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6. ओके, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन द नंबर पोर्शन मेंबरशिप ऑपरेटर. अब इस केस में हमें क्या करना रहेगा? देखो मैं आपको बता रहा हूं. str करेंगे तो भी वो वर्क नहीं करेगा बेटा. 12 इन, इफ आई एम राइटिंग str, सॉरी, इन str bracket 1 2 3 4 5 6 like this, then also it is not checked because I am checking a numeric integer with the string part. That is wrong. तो अब इस केस में हम क्या सीख रहे हैं? पहले हमें एक फंक्शन सीखना है. वो फंक्शन का नाम है रेंज. रेंज क्या करता है? रेंज ऑल्सो हैज 3 पार्ट जस्ट लाइक स्लाइसिंग मेथड. स्लाइसिंग में कौन से 3 पार्ट थे? कैन यू टेल मी बेटा? The slicing is start, stop, and step. Start, stop, step. What is the by default step value? What is the by default step value? +1. +1. What up to what limit the stop value works? Stop value कहां तक वर्क करता है? 1 less than the stop limit. 1 less than the stop limit. अब उसी की तरह सपोज रेंज के अंदर भी 3 पार्ट होंगे, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप. लेकिन अगर मैं कोई एक वैल्यू लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग 4 ओवर हियर, सो व्हाट डज दिस रेंज पार्ट विल डू? इट विल जनरेट ए सीरीज ऑफ नंबर्स. सीरीज मीन्स 1 by 1 सीरीज ऑफ नंबर्स into computer memory starting from 0. यानी अगर मैं इसकी बात करूं
तो रेंज ऑफ 4 यानी इसने क्या किया, कंप्यूटर की मेमोरी में 0 से लेके 4 तक की वैल्यू जनरेट करके दे देगा, लेकिन हम उसको चेक करेंगे तो मुझे वो आंसर रेंज 0,4 ही देगा। लेकिन अब याद रखना, जो 4 दे रहे हैं वो इंक्लूड नहीं होगा, इट विल बी 1 लेस देन द वैल्यू। अब वो पता कैसे चलेगा, आई विल चेक विद द हेल्प ऑफ ए इन मेंबरशिप ऑपरेटर। अब कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग 3 in range bracket 4, it means what, it is going to check now as per this what is the series value, what is the number of series generated into the computer memory। कंप्यूटर की मेमोरी में याद रखना 4 वैल्यू जनरेट करके देगा, लेकिन वो जनरेट किया होगा 0 1 2 3, ओके 0 to 3 तक ही जनरेट करेगा, 4th वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। 4 नंबर वो स्टॉप वैल्यू हो गया, वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं इसके लिए चेक कर रहा हूं तो इसका आंसर देगा ट्रू, क्योंकि 3 इस रेंज में आ गया जो भी मैंने रेंज के थ्रू जनरेट करवाया। अगेन आई एम जनरेटिंग, यू विल बी टेलिंग, सपोज इफ आई एम राइटिंग 4 इन रेंज 4, अगर मैं 4 लिख रहा हूं, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मुझे फॉल्स देगा। 4 जो स्टॉप वैल्यू होता है वो याद रखना वो इंक्लूड नहीं होता, इट इज ऑलवेज लेस देन, हम लोग इसको n कंसीडर करेंगे, ऑलवेज लेस देन n-1 वैल्यू जनरेट होती है। n मतलब द स्टॉप वैल्यू, n मींस द स्टॉप वैल्यू। नाउ इफ आई एम राइटिंग रेंज 10, कैन यू टेल मी व्हाट इज द लास्ट वैल्यू जनरेटेड एज पर दिस फंक्शन? Last, okay, starting from 0 up to 9. If I'm checking 8 in range, what kind of result I will get? True. I'm asking somebody else, kindly reply beta, whoever maybe I'm naming it. Mahesh Kumawat, you have to tell me beta, if I'm writing 0 in range 10, can you tell what result it will come beta? Mahesh beta. Sir, true. True. But if I'm writing -1 and I'm checking, Krishi, can you tell? Krishi, false. Why false beta? Can you give the reason, the number, the result, why it is false? Sir, the first value it included 0. The first value starts from 0 and at the end what last value is created as per the range function? What is the last value? 9. And what do you mean by 10? 10 is the stop part, यानी वो पोर्शन उससे उस लिमिट तक वो क्रिएट करता है, उससे एक वैल्यू कम। चलो, आई होप यू पीपल वेरी वेल अंडरस्टैंड नाउ। बट इफ आई एम राइटिंग रेंज ब्रैकेट 1,5, अब इसका मतलब मैंने ये कौन से 2 पार्ट लिखे हैं? Which 2 part I have mentioned over here? Can you tell me? The first portion called as a hello start, and the next portion we will call as a stop. So as per this thing, which values are generated over here? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so if I'm checking, suppose 3 in range bracket 1,5, so it will give the result as true. But if I'm checking for the 0, what do you tell me what answer it will reflect? False. If I'm writing 5, what answer it will reflect? False. False. Okay, I hope you people are aware up to now. अब मैं आगे आ रहा हूं, I'm giving 1,10, 2. 2 means what? By default, the step value is what? +1. Suppose 1 के बाद +1 यानी 2, +1 यानी 3, इस तरह से जनरेट कर रहा है। अगर अब मैं स्टेप वैल्यू 2 दे रहा हूं, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में +2 कर करके वैल्यू जनरेट करेगा। That means you can consider odd number will be generated. Can you tell the number which is going to generate as per this? 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Okay, 9 is included over here. Now, if I'm writing 5, but if I'm checking with the 6th portion,
as per this, can you tell what answer it will come? False. 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 Okay, now moving ahead, I can even frame an expression as well. I even frame an expression as well. If I'm writing 6 floor division 2, can you tell what answer will come for this? Can you tell beta what answer will come for this? True. 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 What is the floor division value of 6? Floor division 2? 3. 3. So it is the part of that. But instead of this floor division, I'm writing only division. Can you tell what answer will come for 6 divided by 2? 6 divided by 2 का आंसर क्या आएगा? 3. 3.0. 3.0. Okay. But it is a part of this particular range and इसके लिमिट में आ गया, इसलिए वो उसको कंसीडर करेगा. Though it is in float value, not an issue. Okay, though it is in float value, not an issue. But if I'm writing 3 के बदले में 7 कर रहा हूं, तब ये मुझे false दे देगा. यहाँ पे 3.5 आएगा. By default 3.0 मतलब 3 हो गया. Okay, as per the mathematical rule, हमें ये पता है. अब चलो आपको रेंज पता चल गया. अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग लूपिंग सीखेंगे. लूपिंग. अब वो चीज मैं यहाँ पे नहीं, शेल प्रॉम्प्ट में करूँ, स्क्रिप्ट मोड में करूंगा. नाउ टेक अ लुक. आई विल राइट ओनली वन बेसिक प्रोग्राम सो इट विल बी क्लियर इन योर माइंड. अब उसका रूल क्या है देखो. रूल इज लाइक दिस. फॉर फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न फॉर लूप. फॉर लूप क्या होता है? इट इज गोइंग टू रन फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम. फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स. अब कोई भी काम हम लोग जो कर रहे हैं, suppose if I want to print the number, ask the number 10 times, instead of taking input 10 times, I can write a loop which works which will work continuously up to 10 times. अब करेंगे कैसे? ध्यान दो. इसका सिंटेक्स क्या है? इसीलिए मैंने पहले आपको रेंज सिखाया. फॉर एग्जाम्पल, फॉर I will here after for you have to write any of the variable name. यहां पे ही आपको कोई ना कोई वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का रूल आपको पता है, ये वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करते हैं. ओके, कैन वी स्टार्ट द वेरिएबल विद अ नंबर? कैन वी स्टार्ट द वेरिएबल नेम विद अ नंबर? हेलो? No. No. So you can take any variable. So here suppose I am taking for I am taking I. अब यहाँ पे क्या करेगा? इट होल्ड्स दी इंटीजर वैल्यू. अब उसको हम लोग यहाँ पे फॉर आई इन रेंज में कर रहा हूं. पहले इतना समझ लो. फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट 5 कोलन. अब ये सिंटेक्स ऐसा पहले है. फॉर लिखोगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इन और रेंज. अब रेंज के हिसाब से कितनी वैल्यू जनरेट हुई होगी? एज पर द रेंज, विच वैल्यूज आर जनरेटेड in the computer memory? 1 2 3 4. Think again. 0 1 2 3 4. 0 1 2 3 4. Now what does the function of for do? वो क्या करेगा? ये I को वैल्यू असाइन करेगा फ्रॉम द रेंज पार्ट. यानी I के अंदर, अब रेंज के अंदर पहली वैल्यू कौन सी जनरेट हुई है? Which value is generated in the range? 0. 0. Here we don't have to use equal to portion. ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा. फॉर आई क्या करेगा? रेंज के थ्रू एक वैल्यू पिक कर लेगा. अब एट ए टाइम वो एक एक वैल्यू ही पिक करेगा. इट विल नॉट एक्सेप्ट ऑल दोज वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एक सीरीज जनरेट हुई है. ओके, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूं, प्रिंट आई, यानी अब ये लूप के अंदर आ गया. ये स्पेस अपने आप आ जाता है. व्हाट यू कॉल सच काइंड ऑफ स्पेसेस? Can you tell me? Indentation. Indentation. The indentation always occurs if we apply colon sign before that line. Before that line colon देना जरूरी है. ये चीज हमने if में दी थी, elif में दिया था, else में दिया था. अब लूपिंग के अंदर भी ये कोलन का मतलब the structure is completed over here for the for. अब for I in range, I की वैल्यू क्या होल्ड हुई है अभी स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में कौन सी वैल्यू हुई है? 0. 0. 0. यानी अब ये अंदर आएगा
and I'm printing the value I only. अगर I value ही print कर रहा हूं, it will display the value of I, यानी मुझे 0 दिखाएगा फर्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, इसके नीचे कोई लाइन नहीं है. देखो अब ये if का ब्लॉक, for का ब्लॉक चल रहा है. Whatever the statement I am writing, it will work for the for block. अब मैं यहाँ पे कुछ एक और लाइन लिख देता हूं, print. Suppose class 11 for example. अब 0 प्रिंट करने के बाद करेगा क्लास 11 भी प्रिंट कराएगा. अब उसके नीचे कोई लाइन नहीं है, तो अब इसके नीचे कोई लाइन नहीं है, तो यहां से ये लूपिंग का काम क्या है, इट इज जस्ट लाइक ए यू पीपल आर ज्वाइनिंग द, क्या बोलते हैं, कड़ी बना रहे, एक तरह का एक स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है. अब यहां से ये चीज क्या जाएगा, रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा. ऊपर आके फिर से आई के अंदर नई वैल्यू होगी और वो नई वैल्यू पिक करेगा रेंज में से. रेंज के अंदर दूसरी वैल्यू क्या जनरेट हुई होगी, 1. 1. अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से चेंज होके क्या हो जाएगा 1, क्योंकि रेंज के अंदर 0 1 2 3 स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 है, इसलिए 0 से अब वैल्यू 1 हो जाएगा. अब ये 1 वैल्यू को लेके अंदर आएगा. अंदर आने के बाद फिर से क्या प्रिंट करेगा, अब क्या प्रिंट करेगा, हेलो, what it will So print 1 as then class 11. 1 then class 11. Now we don't have any other line, it will go again up. अब next time I की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2. 2. so like this it will store the value up to what, कौन सी वैल्यू तक वो I के अंदर स्टोर करेगा, 4. no, हाँ yes correct, my mistake, 4 वैल्यू तक, 5th नंबर इंक्लूड नहीं होगा. So as per this you can understand, अगर मैं लूप को प्रिंट करा रहा हूं, okay, I'm running this thing, तो आप देख सकते हो 0 फिर क्लास 11 फिर 1 फिर क्लास 11, यानी हर बार प्रिंट जो है अपने आप न्यू लाइन में लेके आ जाता है. मैंने आपको प्रिंट के अंदर बताया था आगे कि अगर मैं प्रिंट के अंदर कुछ भी ना लिखूं तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एंड में एक /n करके कंटेंट रहता है, कैरेक्टर रहता है. /n का मतलब क्या, /n का मतलब Line change. New line. new line. So even if I'm not writing anything over here, it will apply a new line. अब देखो पहले 0 क्लास 11 न्यू लाइन, 0 फिर 1 क्लास 11 न्यू लाइन, इसलिए यहाँ पे ये न्यू लाइन आया. मुझे ये आई को नहीं रिप्रेजेंट कराना है, तो अभी इसका मतलब क्या होगा, सपोज मैंने आपको टास्क दे दिया, राइट योर नेम टू डिस्प्ले 5 टाइम्स, राइट योर नेम टू डिस्प्ले इट 5 टाइम्स. तो आप क्या करोगे, फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट में 5 और यहाँ पे अपना नाम. ओके, इफ आई एम रनिंग द नेम विल बी रिपीटेड, the name will be repeated 5 times. Are you getting everyone what I'm trying to say? Yes, sir. Other students, did you understand the looping method, how it is actually working? It totally depends on the range. It totally depends on the range over here. समझ में आ रहा है सबको? Yes बेटा. सर आई के बदले हम कुछ भी ले सकते हैं. आई के बदले कुछ भी, मैं सपोज यहाँ पे मैं कोई भी लिख देता हूँ, सपोज म्यूजिक. तो यहाँ पे हम लोग अब म्यूजिक के अंदर, ये म्यूजिक एक वेरिएबल की तरह एक्ट करेगा. अब अंदर में उसको प्रिंट करूं या ना करूं, ये बार बार म्यूजिक क्या करेगा, फर्स्ट टाइम यानी प्रिंट के अंदर आके 1 टाइम इसको रन कर देगा, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है. ओके, अब मैं उसको प्रिंट अंदर कराऊंगा. अगर इफ आई एम प्रिंटिंग ओवर हियर इनसाइड दिस, इफ आई एम यूजिंग दिस वेरिएबल टू रिप्रेजेंट ओके हाउ मच टाइम इट इज वर्किंग, so I can write over here also. Suppose मैं इसके अंदर ही कर देता हूं म्यूजिक. आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो. तो अब ये क्या करेगा, 0 फिर अजय, 1 फिर अजय, ऐसे रिप्रेजेंट करेगा. देखो ये वेरिएबल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. वेरिएबल why we are using, it is allowing us to run the loop 1 at a time. एक वक्त पे एक ही बार चलेगा, इसीलिए मुझे सब चीजें एक साथ नहीं चलानी है. समझ में आया बेटा एवरीवन? हाँ सर. अदर स्टूडेंट्स बेटा मेक इट. हाँ सर या इसमें हम सेपरेटर में /n ले सकते हैं ना, एक ही लाइन में, ये लाइन में लिख सकते हैं. यस यस, इफ यू वांट इनटू सिंगल लाइन, यहाँ पे एंड इक्वल्स टू डबल कोट में एक स्पेस दोगे. अब /n के बदले क्या होगा, स्पेस आ जाएगा, यानी सारे कंटेंट एक ही लाइन में प्रिंट होंगे.
सारे कंटेंट एक ही लाइन में, लेकिन इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा बेटा स्वरूप, पहले आप ये क्लियर कर दो। अब रेंज के हिसाब से सपोज मैंने 1,5 दिया, तो अब आप मुझे बोलो कि लूप कितनी बार चलेगा? 4 times. 4 times. 1 2 3 4. Now people will tell me, if I'm writing 10, 15, how many times the loop will run? 5 times. 4. 5. 5. 4 times beta. Think again. 10, 11, 12, 30, sorry,